everyone, this is Yasir Zahir YZ live again in the 7th episode of Live with YZ. As you know, I invite a mental health expert every week and we discuss about mental health issues with a guest. आज भी मैंने एक mental health expert को invite किया हुआ है. As you know कि जैसे हमारे society में it's stigma and people don't tend to talk about mental health issues. और awareness भी हम इसमें create कर रहे हैं कि we want to discuss more about those issues which you want to hear about. लेकिन आप बहुत से लोग नहीं कर पाते वो बातें. So today my guest is Asma Abid. She is a clinical psychologist and a member of PsychBrain's esteemed panel. आज हम बात करेंगे children well-being के ऊपर. So children well-being is a very important topic. क्योंकि इस तरह की रिसोर्सेज हमें नहीं मिलती हैं, हमने देखा है, we have researched a lot about it. तो हमें इस तरह की रिसोर्सेज मिलती नहीं है कि लोग जहाँ पे इस हवाले से बात कर सकें और जो उनके जहनों में सवाल हैं वो पूछ सकें. तो what is children well-being? थोड़ा सा मैं briefly बता देता हूँ what is it all about. Children well-being is the way children feel about themselves and the world around them. It is related to how they cope with life's stresses and challenges. Children's feelings have impact on their, daily activities, which include their behavior, productivity, and the creative expressions. Yes, and it is normal for children to have all sort of feelings. For example, anger, disappointment, sadness, anxiety, hope, joy, and so on. So if children can manage their own feelings and calm themselves down in a difficult and emotional situations, they are more likely to feel good about themselves, and this can lead to complete well-being. So without further delay, let's invite today's guest. As I told you, today's guest is Asma Abid. She is a clinical psychologist and she has worked in this area where she has worked with different children and she has done well-being with different guests. So let me just invite her online. So hopefully she will be here in a few seconds. Hi, so people have started sending me questions. How about teenagers? Faiza ने पूछा है. तो teenagers का Faiza, we will note this and we will talk about it in later episodes. अभी आज जो हमारा जो topic है which is on children well-being, तो हम बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं. तो teenagers के भी अच्छा हुआ आपने सजेशन दिया, तो we will discuss about it. So we are talking about mental health issues. Actually, while she comes online, तो थोड़ा सा आपको बता दूं कि what is PsychBrain doing. PsychBrain is trying to create awareness about mental health issues. We have a lot of psychologists on our panel. And you name it, जो भी problem हो, relationship issues, child mental health issues, if there is there abuse going on somewhere, and if anything related to mental health, you can contact PsychBrain. So we have all experts with us who can deal with all these issues and provide counseling and therapy sessions and address those issues. So we have been doing it for we started in this year and we have been doing this for quite some time. So the success rate is very high. We have received good feedback from the clients and they are very satisfied. Let me just check where is she. Asma is online. Assalamualaikum Asma, how are you? Walaikum Assalam, I am good. चले finally you are online. I hope कि हमारे जो followers हैं वो they were waiting for you. So hope everything is fine at your end. Alhamdulillah. चले wonderful. अच्छा अस्मा मुझे थोड़ा सा बताइएगा. Thank you very much for joining. अच्छा there is a voice आपके background में आ रही है. Yeah. Is it okay now?
जी जी, अब सही, अब सही, ठीक है। ओके। तो अस्मा जी, मुझे बताइएगा अस्मा, थोड़ा सा अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन बताइएगा कि आप क्या कर रही हैं, और स्पेशली ये जो चिल्ड्रन के हवाले से जो मेंटल हेल्थ में एरिया में आपने जो काम किया है उस हवाले से थोड़ा सा हमें भी बताएं, हमारे फॉलोअर्स को भी बताएं। Okay. So I am Asma Abid. I am Associate Clinical Psychologist. I have done my Masters in Clinical Psychology from Institute of Professional Psychology, Karachi. I am currently affiliated with PsychBrain, Consult the Psychologist and Umeed No Clinic at Institute of Professional Psychology. So as you mentioned, Yasir, कि child's well-being is very important because they are our asset. और जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं इन थेरेपी, we don't work alone with child. उसमें रोल ऑफ पेरेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप बच्चों के चाइल्ड थेरेपी का काम करते हैं तो आप पेरेंट्स को अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं. You and therapist and parent collaboratively work with children to enhance their well-being because parents के साथ बच्चे सारा दिन घर में spend कर रहे हैं, उनके साथ time spend कर रहे हैं. So parents role is very important in enhancing child's well-being or in doing therapy and improving social skills among children. ओके ओके, अच्छा अस्मा, इसमें मैंने भी कुछ क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं हमारे पास, जो हमारे फॉलोअर्स हैं उसमें से भी काफी लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं. तो पहला सवाल है, ये बड़ा बेसिक सवाल है इसमें, कि इसमें जैसे हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में हमें पता नहीं चल सकता, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो दे आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. तो हम इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इफ आवर चाइल्ड इज गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, क्या सिम्टम्स होते हैं? Okay, Asir. So sometimes it's very difficult in children to identify mental disorder they are facing because children are in their developmental process. उनकी physical development भी हो रही है, उनकी social development भी हो रही है, उनकी emotional development भी हो रही है. तो आपको नहीं पता चल सकता, आप you can't easily differentiate कि वो developmental process की वजह से ऐसा behavior हो रहा है उनका या किसी और वजह से ये changes इसमें आ रहे हैं. And especially in children, symptoms of disorder may differ with their age. Some children हो सकता है 3-year child में ADHD के symptoms हो सकता है किसी और तरह आए, और हो सकता है 5-year old में वो किसी और तरह उसी disorder के symptom किसी और तरह आपको नजर आए. और स्पेशली जब आप बच्चों के साथ काम कर देते हैं, चिल्ड्रन may not be able to tell you that why they are feeling this way, why they are behaving this way. So this is the responsibility of parents to identify the symptoms they are facing, and there are multiple signs and symptoms which you can identify. For example, your child has started spending time alone. They are not talking with anyone. They are not talking with parents. Their grades are getting declined. जो एक्टिविटीज वो पहले एंजॉय करता था वो एंजॉय नहीं कर पा रहा. तो इस तरह के मल्टीपल साइन और सिम्टम्स अगर ड्रास्टिकली बिहेवियर चेंज हो रहा है तो पेरेंट्स शुड नोटिस दिस चेंजेस एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड टॉक विद योर चाइल्ड अबाउट दिस. ओके, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन आया है, एक तरह बिलाल पूछ रही है कि मेरा बेटा ADHD है, वो कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, काफी कुछ ट्राई किया है, अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ADHD के जो मेनली चिल्ड्रन होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मेन चीज क्या है, उन्हें बहुत ज्यादा डिफरेंट एक्टिविटीज वगैरह चाहिए होती हैं. आप उन्हें एक एक्टिविटी के साथ, क्योंकि उनके साथ मेनली जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं वो फोकस या कंसंट्रेशन इश्यूज उनमें हो रहे होते हैं कि वो एक टास्क को लॉन्ग टाइम के लिए नहीं कर पाते. तो आप उन बच्चों के साथ जो सबसे एक अच्छी टेक्निक है रिवॉर्ड वगैरह की, जिन्हें हम ABA कहते हैं, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, आप उन बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता थ्रू प्रॉम्प्ट्स वगैरह कि जैसे आपने अगर बच्चे को जैसे वो कह रही है कि वो कलर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो आप एकदम से उन्हें 12 कलर्स नहीं दिखाएं. आप उन्हें पहले 2-3 कलर्स दिखाएं, अच्छा, और फिर प्रॉम्प्ट दें कि दिस इज येलो कलर, दिस इज ब्लू कलर, और फिर नेक्स्ट टाइम प्रॉम्प्ट दे के बच्चे से पूछें, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रॉम्प्ट को आप डिमिनिश कर दें. इस तरह आप जो है बच्चे की लर्निंग करवा सकते हैं, उसको कलर्स वगैरह आइडेंटिफाई करवा सकते हैं. ओके ओके, ठीक है, मतलब ये तो उनके एंड पर हो गया. दूसरा ये कि प्रोफेशनल हेल्प इज आल्सो अवेलेबल, तो दे कैन आल्सो सीक हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल. जी, और एग्जैक्टली, PsychBrain is there to the rescue. We have all the experts. Asma is there, so anyone who is willing to get the professional help, they can contact us. So Asma can help us in this regard, right? तो इस तरह से होता है. एंड ऑल आवर सेशंस आर डन ऑनलाइन. तो आजकल पेंडेमिक की वजह से मोस्टली हमारे सेशंस ऑनलाइन ही होते हैं.
तो उसमें ये है कि दे कैन हैव द सेशन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम, आराम से घर बैठे सेशंस हो सकते हैं, दे डोंट हैव टू गो आउटसाइड समवेयर। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच अस्मा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये है कि बहुत सी जगह देखा गया है कि पेरेंट्स की इग्नोरेंस और नेग्लिजेंस की वजह से बच्चों के ऊपर बड़ा असर पड़ता है मेंटल हेल्थ के ऊपर, और वो बड़े डिस्टर्ब रहते हैं। उसमें ये भी होता है कि देखा गया है कि वो जो क्वालिटी टाइम है पेरेंट्स की तरफ से वो नहीं दिया जा रहा होता है, क्योंकि मे भी अब लाइफ इतनी टफ है, लोग सब बिजी हैं, अम्मा भी अब्बा भी सब बिजी हैं, तो वो क्वालिटी टाइम जो है वो नहीं दे पा रहे होते हैं। और उसमें एक और चीज भी हम देखते हैं कि फिर जब लोग ज्यादा मसरूफ होते हैं तो उनके अंदर एक गुस्सा, एक एंगर भी आ जाता है, तो वो घर में आके काम के बाद फिर वो अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज करते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं। तो इन सब चीजों का क्या इम्पैक्ट आता है बच्चे की मेंटल हेल्थ? ओके, देखिए यहाँ से नेग्लिजेंस एंड इग्नोरेंस फ्रॉम द पेरेंट्स कैन हैव सच वर्स्ट इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, कि आप ये चीज इमेजिन भी नहीं कर सकते। बात टाइम पेरेंट्स को ये चीज एक्नॉलेज नहीं होती कि बच्चा आपके पास आया है, वो आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहा है, कोई फीलिंग अपनी, कोई सिचुएशन उसने इनकाउंटर की है, वो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा है। एंड इफ पेरेंट्स इग्नोर देम कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम बिजी राइट नाउ, तो इससे बच्चे को फील होगा कि आई एम नॉट वर्दी, मेरी बात जो है मेरे पेरेंट्स के सामने कोई वैल्यू नहीं रखती। उसकी वजह से it will shatter their self-esteem, it will decline their self-confidence. Other than that, researchers have also shown that the children who experience negligence and ignorance from their parents are at high risk of developing physical and mental health issues. और जब बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस बच्चों को मिलती है पेरेंट्स के साइड से, it can comes in the form of depression, anxiety. Children may involve in the risk-taking behavior. उनमें suicidal ideation ज्यादा हो सकती है। Other than that, जब आप बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं देते, अगर बच्चा, जैसे मैंने बात की, आपको कुछ डिस्कस करना चाह रहा है, बिकॉज चिल्ड्रन नीड सम चैनल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, दे नीड सम आउटलेट्स जहाँ पे वो चीज डिस्कस कर सकें। और जब पेरेंट्स वो चीज, उसकी फीलिंग को वैलिडेट नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो चाइल्ड विल फील इमोशनली डिस्ट्रेस। उसे होगा कि आई एम नॉट वर्दी, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, माई पेरेंट्स आर बिजी इन देयर ओन टास्क। अदर देन दैट, उसके जो अभी शॉर्ट टर्म आउटकम्स तो नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस के इतने ज्यादा हैं ही, उसके अलावा लॉन्ग टर्म इफेक्ट, द चाइल्ड इन फ्यूचर may find difficulty in forming intimate relationship with their partners. They may engage in disruptive behavior, ADHD बच्चों में आ सकता है, नॉन कंप्लायंस बिहेवियर बच्चों में आ सकता है। इन सब चीजों की वजह से इमोशनल अब्यूज, जैसे नेग्लिजेंस की एक इमोशनल अब्यूज के अंदर ही अगर हम बात करें, नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस इसी की एक टाइप है कि बच्चे को आप कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप बच्चों को एक्सपेक्टेशन, सॉरी टू से, लेकिन हमारे कल्चर में देखा जाता है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन स्पेशली रिलेटेड टू एकेडमिक्स बच्चों से बहुत ज्यादा होती हैं कि फलां के बच्चे के तो इतने एज आए हैं, आपके इतने एज क्यों नहीं आए। रादर देन डूइंग दिस के बच्चे के अगर किसी ए सब्जेक्ट में भी ए आया है तो यू शुड एक्नॉलेज दिस एंड वाओ यू डिड ग्रेट जॉब, तो उस चीज को एक्नॉलेज करें रादर देन कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग कि तुमने ये मिस्टेक कर दी, तुमने ये मिस्टेक कर दी। अदर देन दैट, ट्राई टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर चिल्ड्रन, जहाँ पे बच्चे को फील हो कि यार they are acceptable, they are worthy for their parents, उसमें अपनी वैल्यू, सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस फील हो और बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान, ताकि उनकी कम्युनिकेशन भी इनहांस हो सके। तो या सही है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आया है, दानिया मारूफ पूछ रही है कि how can children channelize their anger in a healthy manner? क्या किया जाए? There are so many playful and creative ways जिसमें आप बच्चों के एंगर को, उनकी फ्रस्ट्रेशन को आप निकलवा सकते हो हेल्दी चैनल्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है या बहुत ज्यादा एंग्री फील कर रहा है, यू कैन गिव देम कलर और पेंसिल और पेपर, और उसको आप बोल सकते हो यू कैन ड्रॉ व्हाटएवर यू वांट। वो बच्चा सिर्फ उस पर स्क्रबलिंग, कुछ भी लाइंस बस मारी जा रहा है, की जा रहा है, तो आप उससे क्या होगा, बच्चे की जो फिजिकल एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन जो अपने अंदर वो फील कर रहा है, वो एक हेल्दी वे में, रादर देन कि वो किसी को जाके टीज करे, किसी को जाके बुली करे या किसी के सामने शाउट करे, उसकी जगह आप उसे कोई चैनल दे सकते हैं। आप उसे बैलून की, एक एंगर बैलून बहुत अच्छी टेक्निक है जो आप बच्चों के साथ
प्लेफुल वे में कर सकते हैं कि आप उसे एक बैलून दे दें और आप उसे बोले कि सपोज कि योर एंगर इज कमिंग इनटू दिस बैलून, और वो अपने उस बैलून के अंदर अपना सारा एंगर जो है वो कन्वर्ट कर सकता है, rather than internalizing and externalizing it to the people. सही है। क्योंकि उसमें आजकल ये बड़ा चैलेंज है, जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तो बच्चों को बाहर नहीं भेज रहे होते कि वो नॉर्मली बाहर जाकर खेलें, क्योंकि वैसे भी जब से ये टेक्नोलॉजी आई है बच्चे जो है वो मोबाइल फोन्स लैपटॉप में तो ज्यादा एंगेज रहते हैं। तो जब से पेंडेमिक आया है तो आप समझ लें कि वो डबल उसका ये हुआ है कि वो पहले भी नहीं निकलते थे, तो और ज्यादा ही पेरेंट्स की तरफ से भी है कि वो नहीं जा सकते क्योंकि पेंडेमिक है, तो वो ज्यादातर घरों में ही है। तो घरों में इसी तरह की एक्टिविटीज जैसे आपने बताई है कि ये एक्टिविटीज करवाएं, तो लेट देम इन्वॉल्व इन सम फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटीज, डिवाइसेस से भी थोड़ा दूर होके बैठे और कुछ पेपर या कोई इस तरह की चीज। और कोई आपके पास एग्जांपल है जैसे आपने बलून की बताई और एक राइटिंग की, इसके अलावा भी और कोई चीज कर सकते हैं अगर थोड़े बड़े बच्चे हो अराउंड 10-12 साल के, उस वक्त आप उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्कीपिंग रोप है, ताकि उससे क्या होगा, क्योंकि एंगर इज बेसिकली आपकी एक एनर्जी जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव एनर्जी हो जाती है, जिसे आप किसी दूसरे पे हार्मफुल वे में निकाल देते हो। तो रादर देन दिस आप उसे कोई फुटबॉल वगैरह उसके साथ फुटबॉल को किक करे, या कोई जो बीन बैग वगैरह उसमें वो पुश करे, अपने हैंड को जोर जोर से उस पे मारे। इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज आप 12 ईयर ओल्ड के बच्चे के साथ आप कर सकते हैं। आप उसे फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आप उन्हें करवा सकते हो प्लेफुल वेज में। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो 12 ईयर ओल्ड के साथ कि हेल्दी वे में वो अपना एंगर जो है चैनलाइज करें। सही है। अच्छा, इसको थोड़ा सा इस बारे में और बताइए। जैसे मैंने अभी बात की कि आजकल जो बच्चे हैं वो मोबाइल फोन्स और लैपटॉप गेम्स इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अब उसमें होता ये है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है उन लोगों को रोकना इन चीजों से, क्योंकि आजकल अब ऑनलाइन क्लासेस भी स्कूल में सारी ऑनलाइन हो रही है, मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, तो हमें पता नहीं लगता कि कब पढ़ाई हो रही है कब खेल हो रहा है। तो वो आजकल बच्चे इस तरह से थोड़ा सा डॉज भी देने लगे। तो हाउ टू मेक श्योर कि वो ये जो बैलेंस है कि वो डिवाइसेस के साथ भी खेलें और दूसरी एक्टिविटीज में भी हम किस तरह से इंश्योर कर सकें। और एक चीज जैसे मैं शुरू में बात कर रहा था जब आपका हम वेट कर रहे थे, तो मैं ग्रेटिट्यूड की बात कर रहा था कि जो ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग है आजकल बच्चों में हम देख रहे हैं कि वो छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा करते हैं, दे डोंट रियलाइज द ब्लेसिंग्स दे हैव। तो हम वो क्या करें कि उनके अंदर जो ग्रेटिट्यूड वाला इमोशन है, वी कैन इंस्टिल दैट इमोशन इन आवर किड्स, ताकि वो they realize the blessings they have around them. ओके, आसिफ, पहले जो आपने पूछा कि बच्चों में, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग की वजह से बच्चों में स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, तो इसको पहले हम इस पे आएंगे कि हम इस चीज को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं बच्चों में स्क्रीन टाइम। तो फर्स्टली एक तो चीज ये है कि क्योंकि दे आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, तो पेरेंट्स एक तो उनके हाथ में मोबाइल अवॉइड करें कि मोबाइल फोन्स में उनकी क्लासेस वगैरह नहीं चलाएं, रादर डू इट ऑन लैपटॉप्स। ये लैपटॉप्स आप टेबल पे प्लेस कर दें और उसके अलावा वीडियो ऑन करें, ताकि बच्चे और जो टीचर है उनके दरमियान एक इंटरेक्शन हो, बच्चे को एक वो फीलिंग या क्लासरूम वाली फीलिंग वो एक्सपीरियंस कर सके। और इसके अलावा जब वीडियो ऑन होगी तो बच्चे को ये फील होगा कि यार टीचर इज सीइंग मी, और उसके अलावा वो कोई और टैब वगैरह हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि बच्चों को विजुअल चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं रादर देन ऑडियो। तो जब आप विजुअल एक टीचर को आप अपने सामने देखोगे तो आपकी डिस्ट्रैक्शन कम होगी। अदर देन दैट आप स्क्रीन को मिनिमाइज करें। पेरेंट्स को ये एफर्ट करनी चाहिए, आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज करें। अदर देन दैट उसको ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज वगैरह के साथ आप जो है कन्वर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल आप घर का कोई काम कर रहे हो, लेट्स फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग बेकिंग, तो आप बच्चे को बोल दो लेट यू डू कि आप मिक्स करो सारे इंग्रेडिएंट्स को, या आप ये जो है ये सारी चीजें जो है मुझे ये चीजें पकड़ाते जाओ, आई विल मेक दिस थिंग फॉर यू। तो इस तरह के हाउस होल्ड एक्टिविटीज वगैरह में आप उन्हें एंगेज कर सकते हो। और बहुत अच्छी चीज है कि आप पजल मेकिंग, आप उनके साथ हेल्दी एक्टिविटीज इस तरह कर सकते हैं कि आप लेट्स डू पजल मेकिंग, और बच्चा जो चीज बना रहे आप नेवर डिस्करेज योर चाइल्ड। अगर बच्चा वो चीज गलत भी बना रहा है तो उसकी एफर्ट को अप्रिशिएट करें, यार यू डिड दिस गुड,
और इस तरह उसको, बिकॉज स्मॉल स्मॉल अप्रेजल जब आप बच्चे को देते हैं उससे उसकी सेल्फ स्टीम बूस्ट होती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इनहांस होता है। उसके अलावा आप बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह में, जैसे मैंने पहले बात की, एक्सरसाइज वगैरह, या थोड़ी देर के लिए आप बाय वॉक के लिए उन्हें लेके जा सकते हैं। अदर देन दैट आप रीडिंग, बुक रीडिंग मिलके बच्चे के साथ कर सकते हैं, लेट्स रीड दिस स्टोरी, और बच्चों के साथ खुद एफर्ट करें कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और सॉरी टू से, लेकिन इन टूडेज एरा वी आर सो मच इनटू टेक्नोलॉजी कि हम पेरेंट्स का मोबाइल फोन यूजेज भी बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई है और वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई है। और स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा शैटर्ड हो चुकी है। रिसर्चेस, आई एम कोटिंग रिसर्च हियर, के रिसर्चेस कहती हैं कि 87% ऑफ चांस ऑफ स्पीच डिले इन द चिल्ड्रन इज ड्यू टू स्क्रीन टाइम, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। और इसके अलावा द चिल्ड्रन हु यूज स्क्रीन टाइम अबव 2 आवर्स, उनका जो है रीजनिंग एबिलिटी इम्पेयर्ड होती है, वो उस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज उनमें उस तरह से नहीं रहती जैसे दूसरे बच्चों में रहती हैं। तो उसके अलावा पेरेंट्स को, अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम रिड्यूस हो, इसके लिए पेरेंट्स को एफर्ट करनी पड़ेगी। दे शुड ट्राई टू रिड्यूस देयर स्क्रीन टाइम, बिकॉज चिल्ड्रन आर नॉट ऑब्सेस्ड विद देयर फोन्स, दे आर ऑब्सेस्ड विद यू। उन्हें पेरेंट्स चाहिए, उनकी प्रेजेंस चाहिए। तो जब वो देखते हैं कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है मोबाइल फोन में, तो वो सोचता है हो सकता है इसमें कोई ऐसी चीज है जो मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और दे थिंक दैट दिस थिंग इज एक्सेप्टेबल फॉर मी ऑल्सो। तो बच्चे में भी वो स्क्रीन टाइम जो है यूजेज वो ज्यादा हो जाता है। और इसके अलावा आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स के जो भी कंटेंट बच्चे देख रहे हैं, डू को वॉच विद योर चाइल्ड, उनका कंटेंट लिमिटेड करें, और जो चीजें वो देख रहे हैं वो आप देखें कि वो एक ऐसा कंटेंट, कोई वॉयलेंस कंटेंट तो नहीं है कि बच्चे बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स वगैरह जैसे बहुत ज्यादा हो गई हैं, उससे बच्चों को ऑल्टरनेटिव कोई दें उसके लिए। और इसके अलावा जो कंटेंट वो देख रहे हैं हेल्दी, उसको डिस्कस करें बच्चों के साथ, ताकि इससे क्या होगा, उनकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, उनकी कम्युनिकेशन पेरेंट के साथ अच्छी होगी। तो ये सब टिप्स हैं जो पेरेंट्स जो हैं बच्चों में स्क्रीन टाइम ड्यूरिंग कोविड रिड्यूस करने के लिए उनके साथ कर सकते हैं। सही है, ठीक है। और असमा, ये जो मैं बात कर रहा था ग्रैटिट्यूड की, उस हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे कि जो इमोशंस हैं, ग्रैटिट्यूड या हैप्पीनेस की, पॉजिटिविटी वाले, ये इमोशंस हम किस तरीके से अपने बच्चों में इंस्टिल कर सकते हैं कि वो दे फील इट, कि जी whatever they have, this is a blessing that they have, and a lot of people they don't have those blessings around them. तो वो एक एहसास, एक होने का, वो हम कैसे बच्चों में डाल सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है कि बच्चों में, क्योंकि अगर आप अभी से उनमें ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस उन्हें करवाओगे तो इन अडल्टहुड वो चीज उनमें रहेगी, वो बड़े होके भी वो चीजों के लिए थैंकफुल फील करेंगे। और जो आपने पूछा कि हम बच्चों में प्रैक्टिस कैसे करवा सकते हैं ग्रेटिट्यूड, इसके लिए एक चीज ये हो सकती है कि जब आप जैसे डिनर टाइम में सारी फैमिली मेंबर्स इकट्ठे बैठे हैं, तो आप सबसे पूछ सकते हैं कि एवरीवन टेल के व्हाट आर द थिंग्स दे आर ग्रेटफुल फॉर टुडे। आज ऐसी क्या चीज हुई जिसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो आप। इस तरह से आप, उसके अलावा बच्चों के साथ आप बेड टाइम पे जब बच्चों के साथ उनके साथ रीडिंग वगैरह करें, उसके बाद बच्चों से पूछ सकते हैं, अच्छा ये बताएं कि व्हाट आर द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर टुडे। कोई 3 चीजें बताओ, स्कूल में कोई ऐसी चीज हुई है, फ्रेंड्स के साथ कोई ऐसी चीज हुई है कि जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। अदर देन दैट, उनको जैसे कि आपने साइड बेन के ग्रेटिट्यूड जर्नल का मेंशन किया, जिसमें एक्टिविटीज वगैरह हैं जो आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं टू एनहांस ग्रेटिट्यूड अमंग देम। अदर देन दैट, बच्चों में हेल्पिंग बिहेवियर इंड्यूस करें कि अगर आपके फ्रेंड को किसी चीज की नीड है तो यू कैन प्रोवाइड देम। आप उनमें काइंडनेस, वॉलंटियरशिप आप बच्चों से करवा सकते हैं कि अच्छा अगर आपके पास 10 रुपीज हैं या 20 रुपीज हैं, आप उसमें से 5 रुपीज जो है अगर किसी नीडी पीपल को आप देखते हो, अगर आप बच्चों के साथ खुद ट्रेवल कर रहे हो तो रास्ते में बच्चों के सामने दें, मनी वगैरह जो खड़े हैं उनको दें, ताकि बच्चों में ये चीज जो है, क्योंकि बच्चे, चिल्ड्रन डोंट लर्न व्हाट यू से, दे लर्न फ्रॉम योर इमिटेशन। ठीक है, वो मॉडल करते हैं आपको, जो चीज आप प्रैक्टिस करते हो बच्चे वही चीज प्रैक्टिस करते हैं। तो पेरेंट्स खुद भी ये चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि बच्चों में भी जो है ग्रेटिट्यूड की चीज जो है वो एनहांस हो।
सही है। तो इट्स ऑल अबाउट लीड बाय एग्जांपल, कि आप जो कर रहे हैं उसी को देखते हुए जी। बच्चे आपसे सीखते हैं, एंड बिल्कुल। दे डू एज द सेम वे यू डू। तो ये चीज है। और दूसरा जो ग्रेटिट्यूड की आप बात कर रही हैं उसमें जैसे हमारे पास साइक ब्रेन के पास ग्रेटिट्यूड जर्नल जो हमने लॉन्च किया किड्स जी। का, उसका मेन जो उसके पीछे मकसद था वो यही था कि इस इमोशन को हम जो है वो बच्चों के अंदर डालें, इंस्टिल इंड्यूस करें। जी। जैसे हमने अभी बात की कि हमें नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वी डोंट रियलाइज, हमें पता भी नहीं चलता। तो उस जर्नलिंग के थ्रू क्या होता है कि दे हैव क्वेश्चंस, जैसे आपने कहा कि व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर टुडे, तो इस तरह के प्रोबिंग क्वेश्चंस हैं। दे मेक यू रियलाइज द थिंग्स अराउंड देम, जो आपके पास चीजें हैं उनका आप शुक्र अदा करें कि यार ये चीज हमारे पास है। तो वो डेली प्रैक्टिसिंग Exactly. ग्रेटिट्यूड जर्नल के अंदर, जिसमें अगर छोटे बच्चे हैं तो इफ दे कैन नॉट राइट इट तो दे कैन जस्ट ड्रॉ इट, वो किस तरीके से ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके जहनों में क्या चल रहा है। तो एक तो उससे कंप्रीहेंशन बड़ी स्ट्रांग होती है, दे फील मोर एनर्जेटिक, उनकी मेंटल कैपेबिलिटी बढ़ रही होती है। और जब आपकी जो शार्पनेस जब इनहैंस होती है तो ऑब्वियसली यू आर एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स साथ में। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, राइटिंग स्किल्स चीजें हो जाती हैं। तो इसके बड़े बेनिफिट्स हैं जर्नलिंग के। तो ये बड़ी रिसर्च के बाद हमने लॉन्च किया था। तो आई होप के लोग इसको रियलाइज करें, इसकी इम्पोर्टेंस, और बच्चों को आदत डालें कि वो प्रैक्टिस करें ग्रेटिट्यूड जर्नल। अच्छा अस्मा, एक हमारे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने एक सवाल किया है। वन ऑफ द फॉलोअर्स ये पूछती है कि मेरा बेटा 12 साल का है और वो किसी की बात सुनता नहीं है, he doesn't listen to anyone। वो अब कह रही है कि मैंने, देखिए पहली चीज तो ये है कि आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि अगर वो कंप्लाई नहीं कर रहा आपके बिहेवियर को, क्या कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है जिसके बाद वो कंप्लाई नहीं करता, या टोटली वो आपकी किसी भी चीज को, किसी भी बात को कंप्लाई नहीं करता। अदर देन दैट, जो आपने लायर की बात की कि वो झूठ बोलता है या ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होता है, तो हो सकता है पेरेंट्स शुड नोट दैट कि आर दे क्रिटिसाइजिंग देयर बिहेवियर, के मतलब अगर बच्चे से कोई मिस्टेक हुई है, वो आके बता रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स उस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुमने ये चीज खराब क्यों की है, तुमसे ये मिस्टेक क्यों है। क्योंकि दिस इज द वन ऑफ रीजन कि अगर बच्चे को बहुत ज्यादा स्कोल्ड या फिजिकल पनिशमेंट दी जाए तो बच्चे माइट एंगेज इन लायर, और इस टाइप के बिहेवियर में वो एंगेज हो सकते हैं। अदर देन दैट, जैसे कि मैंने पहले बात की, AB अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, विच इज द वेरी बेस्ट टेक्निक टू बी यूज्ड विद चिल्ड्रन। इसमें आप जो इन्होंने स्टडी की बात की कि बच्चा स्टडी में इन्वॉल्व नहीं होता, एंगेज नहीं होता, तो आप उसके बच्चे की स्टडी को जो है वो स्मॉल टास्क में ब्रेक कर सकते हैं। कि अगर आप अभी 1 पेज करोगे तो आपको यू विल गेट योर फेवरेट कैंडी, यू विल गेट योर फेवरेट टॉय, यू विल गेट योर फेवरेट चॉकलेट। इस तरह के छोटे छोटे रिवॉर्ड्स आप बच्चे को दे सकते हैं। अब 1 पेज करोगे तो आपको प्ले टाइम मिलेगा, 2 पेज करोगे तो आपको ये चीज मिलेगी। ट्राई टू गिव रिवॉर्ड्स टू चिल्ड्रन, बिकॉज इसकी वजह से बच्चे, बहुत अच्छी लर्निंग बच्चों की होती है, उनको कॉन्सिक्वेंसेस का जब आप बताते हो कि आपको ये चीज मिलेगी, तो ज्यादा एनर्जेटिक हो कि वो टास्क जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सही है। थैंक यू अस्मा, थैंक यू वेरी मच। वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि ये टॉपिक जो बड़ा वास्ट है और बच्चे जो है सबके लिए बड़े प्यारे होते हैं, तो सबके जहनों में सवाल हैं बहुत सारे, लेकिन वी हैव लिमिटेड टाइम। तो मे बी सम टाइम लेटर हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे, और जो सवाल रह गए हैं सबके जहनों में, मेरे जहन में भी काफी सवाल हैं, तो फिर हम लेटर ऑन एक नेक्स्ट सेशन फिर रखेंगे आपके साथ, और उसमें हम वो सवाल पूछ लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, और बहुत जबरदस्त फ्रूटफुल टॉक रही है आज की, और आई होप कि जितने भी फॉलोअर्स हैं हमारे, उन लोगों ने भी काफी चीजें सीखी होंगी, हाउ टू डील विद चिल्ड्रन नाउ, और क्या करना है, किस तरह से करना है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। All right, thank you very much. See you guys next time. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah.